evening, Tushar sir, and good evening, everybody. Good evening, Tushar sir. Good evening, sir. Yes, good evening. So, shall I start now? Yes, sir. Okay. Once again, good evening, everybody, and let's have the press start here in this evening. So, just have to recall what we have seen here in last lecture. We are here with structure of an atom, and we have seen that the journey began with a discussion of discovery of electrons, protons, neutrons, atomic models. That J.J. Thomson atomic model, then Rutherford's atomic model, and furthermore, also we have seen Bohr's atomic model. In last lecture, we have discussed Bohr's atomic model, and for each and every discovery, foundation is laid by some other discoveries in respective fields. So that has laid the foundation for these discoveries that leads to have these discoveries over here. And then we have this different atomic models which are proposed for us, and that's what we are discussing as of now. Now the thing is that being J.J. Thomson atomic model is rejected, we have to go ahead for Rutherford's atomic model. Rutherford atomic model had some drawbacks, disadvantages. That's why again we have to go ahead for next atomic model, for Bohr's atomic model. Before Bohr's atomic model, electromagnetic radiations were discovered. The properties related with electromagnetics were studied well, and at the same time, the duality, that dual nature of this electromagnetic radiation is also was part of study, and that stated these electromagnetic radiations has the wave nature as well as the particular nature, and because of this particular nature, we have the quantum theory to again. तो क्वांटम थ्योरी भी हमारे सामने आया और ये दोनों थ्योरीज के आधार पर एट द सेम टाइम स्पेक्ट्रम रिलेटेड स्टडी स्पेक्ट्रम हमारे सामने आया और ये सारे ने सपोर्ट किया बोर्स एटॉमिक मॉडल को. इस बैकग्राउंड पे हमारे सामने बोर्स एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आ जाता है और हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस दैट पार्ट, तो ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया था. नाउ द थिंग इज दैट व्हेन जस्ट वी आर गोइंग बिट अहेड, बिट हम लोग जो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर, सो हमने ये भी डिस्कस कर दिया हियर. What are the postulates of Bohr's atomic model? What are the merits of Bohr's atomic model? And then what are the drawbacks of this Bohr's atomic model? That is what we are discussing. तो कल हमने ये देखा कि Bohr was a colleague with Rutherford, and when they kept apart, thus Bohr took the consideration of all the discoveries happening in different fields, respective fields of chemistry or physics, and he developed his own atomic model, and that is before us now. So the first assumption put forward by Bohr's atomic model, that he stated that electrons revolves around the nucleus, as it was stated like Rutherford. So उसमें कोई change नहीं आया. Then दूसरा उसने change कर दिया कि till the electron revolves in any particular orbit that may be called as stationary orbit. Afterwards, that is called as stationary orbit. Electron neither absorb energy nor emits the energy. Electron neither absorb energy nor emits the energy. That's why it revolves in circular orbit. Whenever some energy incident on that part, so that electron may absorb energy and go to the excited state, and while coming to ground state, same energy is emitted, and that energy is given by delta E is equal to E2 minus E1. and हमें अच्छी तरह जानते हैं इसके अंदर क्या कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ frequency of emitted or absorbed radiations, that is also called as Bohr's frequency, and that can be calculated by B is equal to delta E upon H, because delta E is equal to H mu. ये क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला था, वो हमने देखा था और उसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. So delta E is equal to H mu, that is mu is equal to delta E upon H, that is the Bohr's frequency. ये उसने यहाँ पे दी थी हम लोगों को. Got it? And these were the postulate put by him, and also one of the important postulate, that is angular momentum of the electron, that is mvr is equal to integral multiple of h upon 2 pi. मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसके एंगुलर मोमेंटम और nth शेल, ये दोनों एक दूसरे के साथ उस तरीके से रिलेटेड थे, वो हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. फिर हमने देखा what are the merits of this Bohr's atomic model. Number one merit is that first time Bohr stated that there are stationary orbit. Concept of stationary orbit is given by Bohr. Stationary orbit का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर पाथ उसके अंदर अलॉट किया जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दिया जाता है, उसी के अंदर वो रिवॉल्व होता है, and that is the concept of stationary orbit. Furthermore, these stationary orbits are named as, you can say, principal quantum number by quantum theory, and these are numbered as 1, 2, 3, 4 away from the nucleus, या फिर KLMN away from the nucleus. ये उसका पहला मेरिट था. दूसरा मेरिट था, he has given the formula to calculate the radius of
ऑर्बिट, दैट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, कल हमने देखा, दैट इज n square into a naught, which is a constant 52.9 picometer is the value for that. ये हमने देखा, ये दूसरा था. तीसरा मेरे उसका था कि he has given the formula to calculate the energy of electron in n shell, and that energy is equal to minus Rydberg constant in bracket 1 upon n square. ये formula हमने उसके अंदर discuss किया. That is the formula. Okay. So these are the merits what he has given, and based on these merits, the hydrogen spectrum is again explained well. So जो already पहले 5 साइंटिस्ट ने हमने देखा कि काम किया था, जिसके अंदर Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Fernd, these were the 5 scientists who studied the spectrum of hydrogen atom. और spectrum क्या होता है ये भी हमने देखा कि that is the colored bands of light in the spectrum, and that is nothing but the different wavelengths we are present in a light that is separated by the prism or any of the diffraction or any of the instrument that gives a colored band, and this colored band is nothing but the spectrum. So हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ये 5 साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद उसे बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो फॉर्मूले हमारे सामने रखे, रेडियस का फॉर्मूला हमारे सामने रखा टू कैलकुलेट का, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे सामने रखा, और इसके आधार पर वापस उसे हम लोग अलग तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. जो पहले साइंटिस्ट ने दिया था उसके अंदर और कंट्रीब्यूशन बोर्स एटॉमिक मॉडल के कारण होता है, और उसे अलग तरीके से वापस हम उसे प्रूव कर सकते हैं. तो जैसे हमने कल देखा था, तो अभी देखेंगे हम लोग कि उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, the line spectrum of hydrogen, how on the background of this Bohr's atomic model. So let's move to line spectrum of hydrogen. So line spectrum of hydrogen. Line spectrum of hydrogen atom. Line spectrum मतलब colored bands of colored bands is nothing but the line spectrum जो हमने कल डिस्कस किया था. It's not different one. So that is the line spectrum. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 ऐसा है कि दिस इज द हाइड्रोजन एटम. से दिस इज द हाइड्रोजन एटम. ये हाइड्रोजन एटम है, इसके यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है और ये उसके ऑर्बिटल है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो गो टू हायर स्टेट, हायर ऑर्बिट में चला जाता है. दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. व्हाइल कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब दिस इज द एनर्जी, this is the energy from this one, ये absorb के यहाँ पे जाएगा, वापस coming down, वापस energy release करेगा. So this is the energy incident and this is the energy emitted. तो energy incident हुआ electron के ऊपर, electron absorbs some part of energy, goes to excited state. While coming to ground state, emits the energy, that is the emitted energy. ये जो energy है, इसका spectrum study किया गया. तो ये जो energy, कितना energy electron ने absorb किया, energy कितना absorb किया. This is the first orbital, this is the second orbital, जैसे 1 2 3 ऐसा कहते हैं हम लोग, ऐसा 1 2 3 4 ऐसा कहते हैं. तो उसका जो एनर्जी है क्वांटम थ्योरी के हिसाब से डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू E2 minus E1, दैट इज नथिंग बट द h mu. ये हमने देखा. सो ऑलरेडी हमने देखा था हियर. सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू शेल्स, two orbitals, is given by this formula E2 minus E1. E1 indicate the energy of first shell and E2 indicates the energy of second shell, and दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट द डेल्टा E. And ये एनर्जी होता कितना है, तो that energy is equal to the energy of quanta, which is equal to h mu. This is given by quantum theory. हम जानते हैं. So इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से यहाँ पे जब तभी जाएगा जब वो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, that is E2 minus E1, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो यहाँ पे चला जाएगा. So इसका मतलब ये है the energy of this energy absorbed by this electron must be equal to delta E is equal to E2 minus E1. Okay. अभी कुछ बुक के अंदर ये आपको ऐसा मिलेगा, डेल्टा E is equal to E2 मतलब फाइनल and EI that is initial. क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, फर्स्ट एंड सेकंड सेल होगा. हो सकता है कि सेकंड से थर्ड में जंप करे, हो सकता है थर्ड से फोर्थ में जंप करे, फोर्थ से फिफ्थ में जंप करे, कोई भी शेल हो सकता है. दैट इज इंडिकेटेड बाय n. शेल्स आर इंडिकेटेड बाय n1 n2 n3, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो स्टेशनरी कॉन्सेप्ट दिया था बोर एटम में. तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप कर सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन पहले से सेकंड में है तो सेकंड से थर्ड में जंप कर सकता है, थर्ड में था तो फोर्थ में जंप करता है. और इसे अगर जनरलाइज करना है तो इसलिए ये फाइनल और इनिशियल बोला है. तो इनिशियल का मतलब I is equal to 1 2 3 4, फाइनल का मतलब हो सकता है 2 3 4 कितना भी हो सकता है, सो ऑन. तो कुछ बुक में आपको E2 minus E1 मिलेगा, कुछ बुक में आपको इनिशियल और फाइनल मिलेगा. दोनों एक ही होता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ फाइनल शेल एंड वैल्यू ऑफ इनिशियल शेल में भी 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स जो अभी पुट करना, जो यहाँ पे मैंने 2 और 1 लिया था, जो हाइड्रोजन के केस में वही होगा, बिकॉज हाइड्रोजन में वही तो जंप पॉसिबल होता है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल और वहां से वो एक्साइटेड स्टेट में सेकंड शेल में जा सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो इन दैट सेंस इस तरीके से होगा. तो ये फार्मूला होता है उसके अंदर. गॉट इट. नाउ
बोहर ने क्या किया हम लोग को, बोहर ने फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, and that formula is nothing but the energy of electron in nth cell is equal to minus RH. RH is a Rydberg constant. RH is a Rydberg constant in bracket 1 upon n square. 1 upon n square. This is the formula given by Bohr to calculate the energy of electron. अब देखिए इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया वो एनर्जी है कितना, डेल्टा ई इतना एनर्जी, ठीक है, और डेल्टा इतना एनर्जी है तो डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आर। अभी इस फॉर्मूला को, दिस इज द एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ई आर मतलब फर्स्ट का, तो ये क्या होगा माइनस आर एच, कांस्टेंट होता रहेगा, हियर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर है, दिस इज एन आई स्क्वायर आई, तो आई इज ith शेल कहा जाता है उसे, आई का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ith शेल मतलब इनिशियल शेल हो सकता है, मानो फर्स्ट तो फर्स्ट होगा, मतलब हियर 1 अपॉन n1 स्क्वायर भी ले सकते हो या n जनरलाइज सेंस में ni स्क्वायर लिख सकते हो। वही ef फाइनल सेल की अगर बात करते तो होगा माइनस rh, दैट इज 1 अपॉन nf स्क्वायर, ये रहे, गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग का फार्मूला में, बिकॉज़ जनरल एनर्जी का फार्मूला ये है हमारे लिए, जनरल एनर्जी कैलकुलेट करने का, व्हिच इज गिवन बाय बोर टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। अभी हमारा इलेक्ट्रॉन अगर ith शेल में है, इलेक्ट्रॉन हमारा फाइनल शेल में है, तो उसका एनर्जी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, यू कैन हैव डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ई एफ का वैल्यू कहाँ पर है, ये वाला, तो दिस इज माइनस आर एच इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, ये रहे। अभी ये यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस और आई माइनस, ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, प्लस बनेगा, दैट इज आर एच, सॉरी माइनस लेते हैं और ये माइनस आर एच हियर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर ऐसा लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा और वी कैन टेक दिस आर एच एज अ कॉमन कांस्टेंट, तो फाइनली आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच इन ब्रैकेट आएगा, सो this will become plus and this will become minus, so it will become 1 upon ni square minus 1 upon nf square. So this is the formula what by which we can calculate the energy. इस फॉर्मूला से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। अभी डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू है, और एच म्यू का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द म्यू बार में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और म्यू बार में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू बार इज इक्वल टू, जो हमने कल प्रॉपर्टीज देखे थे, प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो प्रॉपर्टीज है उनमें से एक प्रॉपर्टी था वेलोसिटी का था, वेव नंबर का था, दैट इज वो सारे थे, तो ये अगर यहाँ पे रख देते तो वी कैन कन्वर्ट दिस फार्मूला इनटू द फॉर्मेट ऑफ वेव नंबर, म्यू बार इज इक्वल टू Rydberg constant into this will be the formula, final formula we get here. So this is how we can calculate. So अगर हम लोग nth वैल्यू रखते हैं, मतलब कौन से सेल्स का इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू अगर हम वहां पे रख देते हैं, तो we can calculate the difference of energy between these two orbitals, that is the energy which is absorbed by the electron. तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो इधर आएगा इनिशियल रहेगा फर्स्ट, फाइनल रहेगा हमारा सेकंड। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से थर्ड में जंप कर रहा है तो यहाँ पे रहेगा आपका सेकंड, यहाँ पे रहेगा थर्ड, इनिशियल रहेगा हमारा 2 और फाइनल रहेगा हमारा 3। सो दिस इज द कॉन्जुगेटिव, कोई भी दो ऑर्बिटल्स हम लोग ले सकते हैं, कोई भी दो शेल्स ले सकते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन देम एंड हाउ मच इज द एनर्जी absorbed by that electron and how much is emitted, वो हम लोग दोनों निकाल सकते हैं, because the energy of quantum we not know. So this is the way how we can calculate this one, and the spectrum, the line spectrum of hydrogen can be explained, जो ऑलरेडी मैंने कल डायग्राम ड्रॉ कर दिया था आपको एनर्जी का, कि लाइमन सीरीज कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे फॉल होता है तो लाइमन सीरीज देता है, कहीं से भी सेकंड पे फॉल होता है तो बाल्मर सीरीज है, कहीं से भी थर्ड सेल पे फॉल होता है तो पार्शियन सीरीज है, ऐसे पांचों सीरीज दिए थे, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, bracket and fund, LBP, BP. These are the line spectrum series for the hydrogen which are given by the scientists, and these are big further extended or more explained by Bohr, because he has given these two formulas to calculate the energy of electron in n cell and to calculate the radius of electron in n cell. So based on that, it is more explained. So that is what we have the background for this one, Bohr's atomic model, and ये spectrum hydrogen हमारे सामने उसके साथ आ जाता है। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल हुआ, उसके अजम्पशंस, उसके मेरिट्स हुए, और उसके आधार पर एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ थिंग इज, apart from all this content and all, there are some limitations, there are some disadvantages of this Bohr's atomic model.
So let's see now what are the disadvantages or demerits of this Bohr atomic model that we will discuss here. So let's move ahead. Let's discuss that. Right. So what are the disadvantages of this Bohr atomic model? Okay. Now you can say disadvantages or demerits. Disadvantages. Yeah, demerits of this Bohr atomic model. There are 1, 2, 3, 4 मेजर 4 ही उसके डिसएडवांटेजेस हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के। सबसे पहला है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल could not explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेरी वेल। अब देखिए कल से मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि ये स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से हमारे सामने आया है। तो मैंने बेसिक चीज ये बताया कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर आज तक किसी ने किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा है, बट एटम का स्ट्रक्चर डिराइव करते समय लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज यानी कि स्पेक्ट्रम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो स्पेक्ट्रम के आधार पर बताया जा सकता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल्स में है और उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, मतलब वो दो शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, और उसी आधार पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम कैन बी गिवन। सो इसीलिए हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम ये अगर पता करना है तो उसके स्पेक्ट्रम पढ़ना जरूरी होता है, और सबसे सिंपल और इजी स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है। So most of the scientists studied hydrogen spectrum very well, but even after that try and that discovery, Bohr could not explain hydrogen spectrum very well. Number one. Number second, though he has given the formula to calculate the energy of electron in cell, he has given the formula to calculate the radius of electron in cell. These are merits. ये अच्छी बात है. But at the same time, he could not explain hydrogen spectrum very well. That is the first disadvantage. Second disadvantage is that he could not explain the spectrum other than hydrogen atom. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो कुछ लेवल तक, कुछ हद तक बोर ने एक्सप्लेन किया, बट जिस एटम में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑक्सीजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम आता है, जिसके अंदर 2-3 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो स्पेक्ट्रम और कॉम्प्लिकेटेड आता है, और कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि देखिए हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि मानो हम लोग कहीं से जा रहे हैं और कहीं से हम लोगों को आवाज आता है कि एक बंदा बात कर रहा है, तो इसका मतलब अगर बातें चल रही है तो हम लॉजिकली समझते हैं, या किसी रूम से बातों की आवाज आ रही है तो हम मान सकते हैं यार कोई बात कर रहा है तो इस रूम में हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा बंदे हो जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, या उस रूम में हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो फोन के ऊपर दूसरे किसी के साथ बात कर रहा है ना। अगर कोई नहीं अकेला है तो उसे पागल समझेंगे, लाइक दैट। तो जैसे लॉजिक से बात किया जा सकता है उसी तरीके से इसके अंदर स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इजी मिलता है, बट whenever the spectrum of atom having more than 2 electrons, 2 or more than 2 electrons is studied, that is very much complicated, which is not explained by Bohr. तो बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ हद तक एक्सप्लेन किया, but he could not explain the spectrum of other atoms containing more than 2 electrons. ये दूसरा disadvantage। और तीसरा disadvantage ये है, there is a effect called as Zeeman effect and Stark effect. So there is Zeeman effect and second is the Stark effect. Okay, yes, Stark is the name of scientist. Stark and this is Zeeman. These are the two different scientists. उन्होंने क्या किया? They studied the spectrum. कैसा spectrum study किया? So this is the ray of light which is passed through the prism, and here we get the spectrum. यहाँ पे हम लोग उसका spectrum मिल जाता है. Okay, ये spectrum मिल जाता है. अभी Zeeman ने क्या किया कि ये जो ray of light है यहाँ पे magnetic field अप्लाई किया. Magnetic field, say it is south and north, इस तरीके से. तो मैग्नेटिक फील्ड जाता है, दिस रे ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये रे ऑफ लाइट अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम के अंदर और स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम के अंदर और स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम के अंदर और स्पेक्ट्रम आता है, मतलब एक स्पेक्ट्रम के अंदर दूसरा स्पेक्ट्रम प्रेजेंट है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब जैसे कि हम बहुत बड़ा सा ग्रुप का फोटो है, हम जूम आउट करेंगे तो और कुछ लोगों को देख सकते हैं, और जूम आउट करेंगे और देख सकते हैं, लाइक दैट। या हम लोग मानो हाईवे से दूर चल रहे हैं और बहुत बड़ा कहीं तो एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, उसके ऊपर कुछ तो लिखा है, बहुत दूर होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। जैसे हम लोग नजदीक जाएंगे तो हमारे विजिबल रेंज में आएगा तो हमें दिखाई देता है, फिर बड़े अक्षर, फिर छोटे और फिर बारीकी से पढ़ सकते हैं, लाइक दैट। उसी तरीके से होता है। ये जो है पहले एक ही स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो स्पेक्ट्रम के अंदर और स्पेक्ट्रम है। वो कैसा है? स्पेक्ट्रम के अंदर और स्पेक्ट्रम कैसा हो सकता है? कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सो this is called as splitting of spectral lines in a magnetic field. This is discovered by Zeeman.
Same phenomena is observed by Stark named scientist in presence of electric field. मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर हम इस रेडिएशन को पास करते हैं तो इसी टाइप का हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलता है. दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. एक स्पेक्ट्रम के अंदर दूसरा स्पेक्ट्रम, उसके अंदर और स्पेक्ट्रम, लाइक दैट फिनोमेना मिलता है हम लोगों को. एंड दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. बट स्टार्क साइंटिस्ट फाउंड इट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जीमन नेम साइंटिस्ट फाउंड इट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बीन आस्क्ड बोर. ठीक है, एक स्पेक्ट्रम मिला, उसका स्टडी किया हमने. लेकिन स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम क्यों है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों सेपरेट आउट होता है? अगर ये दोनों फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो सिंपल स्पेक्ट्रम मिल जाता है, और ये फील्ड अप्लाई करेंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है. तो ये पूछा गया है बोर को कि हाउ और व्हाई इट हैपेंस. दैट मींस कि एटम के अंदर और कुछ है, इलेक्ट्रॉन के अंदर और कुछ है, जिसके कारण ये स्पेक्ट्रम आ रहा है. सो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट. मतलब बोर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. जीमन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड. और स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड. और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रम विद इन स्पेक्ट्रम, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. एंड दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर, एंड दैट्स व्हाई इट फेल्स. ये वहां पे फेल हो जाता है. One more thing Bohr could not explain that. Whenever reaction occurs, how these atoms form the molecules? How these molecule reactions occur? What are the reasons behind that? That was again big question asked to Bohr, and he could not explain that. So these are the 4 reasons. Because और भी एक उसके अंदर आ जाता है कि आगे की जो थियरीज है, आगे की थियरी ये बताते हैं कि मैटर ड्यूअल नेचर का होता है. ड्यूअल नेचर का मतलब उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है. मैटर क्या? कल जो हमने बात की थी, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज अ वेव और पार्टिकल. मैटर के बारे में रखा गया कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट यू कैन से ड्यूअलिटी ऑफ मैटर. So matter exists in particle form, matter exists in wave form. तो इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन वेव है? So here Bohr considered electron as of a particle nature. He didn't consider electron as of a wave nature. तो सिर्फ उसने एक ही साइड उसका देखी है. वो इलेक्ट्रॉन की कई सारे प्रॉपर्टीज वेव नेचर के साथ एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई ये भी उसका एक फेलियर माना जाता है. लेकिन ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके फेलियर्स है. So number 1 failure था, he could not explain the spectrum of hydrogen atom very well. Number 2, he could not explain the spectrum of atoms containing more than 2 electrons other than hydrogen atom. तीसरा, he could not explain the splitting of spectral lines in magnetic field called as Zeeman effect, or also he could not explain the splitting of spectral line that's called a Stark effect in electric field. And last, he could not explain the chemical reactions, why the molecules and crystals are formed. He could not explain that part, and that's why it fails. So that's why Bohr has failed, and that's why we have to proceed ahead for the next atomic model. It's called the quantum mechanical model, which is the last atomic model here in this chapter, which is most advanced, widely accepted throughout the world. अगर आज कोई atomic model है, that is the quantum mechanical model. लेकिन मैं वापस इस बात को दोहरा रहा हूँ. सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज पुट फॉरथ बाय रुदरफोर्ड. रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया बोर ने. उसी को एक्सप्लेन करने की बात आती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ये किसी ने भी नया एटॉमिक मॉडल हमारे सामने नहीं रखा, क्योंकि उन्हें भी वही एटॉमिक मॉडल मिला जो रुदरफोर्ड को मिला. बस रुदरफोर्ड could not explain some of the phenomena related with that. Bohr has some added few things, and he tried to explain the same phenomena. Quantum mechanical model, based on some mathematical derivations, explain the same model, but different तरीके से. मतलब ये होता है कि successful person don't do the different thing, they do the things differently. Same like that. एक ही एटॉमिक मॉडल था जो बोर ने रखा, रुदरफोर्ड ने रखा था. वही एटॉमिक मॉडल आगे से एक्सप्लेन करने के लिए अलग-अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया, थोड़े से चेंजेस किए गए, मॉडल वही रहा. सो दैट इज व्हाट वी हैव. सो लेट्स मूव टू द फोर्थ एटॉमिक मॉडल कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. लेकिन इसके लिए भी ये होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी डिस्कवरीज होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके लिए पहले कुछ और डिस्कवरीज होना जरूरी है. और बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स ढूंढे गए, वो ड्रॉबैक के लिए 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमारे सामने आती है. उसमें से पहला है डी ब्रोगलीज थ्योरी. डी ब्रोगलीज थ्योरी आता है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, व्हिच इज प्रूफ फॉर द डी ब्रोगली. और दूसरा थ्योरी आता है, दैट इज यू कैन से हियर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये 2 थ्योरीज है जिन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट किया एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बेसिस तैयार किया, फाउंडेशन तैयार किया. सो लेट्स हैव दैट लुक ओवर दिस 2 theories. So who rejected Bohr's atomic model and put forth foundation of quantum mechanics model? Number 1 is de Broglie. De Broglie's
dual nature of matter. Dual nature of matter. और अभी देखिए, don't get confused with this part. परसों जो हमने duality देखा था, that was the electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations exist in the form of wave, that may exist in the form of particle. आज जो डिस्कस कर रहे हैं duality of matter, dual nature of matter. तो मैटर अलग बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग बात है। डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट, ये जैसा मोगली जैसा लगता है ना, डी ब्रोगली. सो this de Broglie scientist who put for the concept of, many of the scientists supported that part, that is dual nature of matter. Almost in 1924, somewhere around that, he proposed this theory, that is dual nature of matter. According to this theory, every matter should exist in a wave form or as well as a particulate form, a particle form. Every matter. अभी देखिए, मैं कई बार आपको कहता हूँ कि पूरा सारा दिस टोटल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैटर, और केमिस्ट्री में जब स्टडी करते हैं तो मैटर ही मैटर होता है ना. हम खुद भी एक मैटर होते हैं, मतलब इंसान भी एक बहुत बड़ा मैटर है. इंसान तो दुनिया में नेचर में सबसे बहुत बड़ा खतरनाक मैटर है, बट हम भी मैटर होने के बाद अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगर बात करते हैं तो हम एक पार्टिकल भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी है, बट हम वेव फॉर्म में भी होते हैं, है ना. हम खुद वेव फॉर्म में होते हैं, ऐसा उसका कहना है, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी मैटर. सो इसका मतलब हम भी उस वेव फॉर्म में होंगे. शायद उसी कारण से हमारे थिंकिंग के अलग अलग वेव्स हमारे दिमाग में आते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव different moods and all, है ना. This is just joking, remove that part. But the important thing is that according to de Broglie's theory, matter exists in dual form, that is, you can say particle form as well as wave form. Every matter has a particulate form and particulate form has the wave form, and he has given the formula for that one. This can be calculated by lambda is equal to h upon mv, and h upon mv is nothing but the momentum given by p, like this one. So इसका मतलब है lambda is inversely proportional to mass. Inversely proportional to mass. अगर हम लोग ये h and v constant रखते, velocity constant रखते, तो this is the formula we get here. So this is called, you can say, de Broglie's principle. तो इसका दूसरा मीनिंग ऐसा होता है. पहला मीनिंग क्या था de Broglie's principle का? Matter exists in both form, particle as well as wave form, and he find out the relation between them. And relation what? Wavelength is equal to h upon mv, that is h upon momentum. Momentum is product of mass and velocity. So this lambda is equal to 1 upon m. M is a mass. अगर हम जानते हैं किसी पार्टिकल का h is a Planck's constant, वो constant है, और वेलोसिटी अगर उसको constant रखते हैं तो mass is inversely proportional to wavelength is inversely proportional to mass. इसका मतलब क्या होता है? मास अगर लार्जर है तो वेवलेंथ छोटा होगा, और मास अगर छोटा है तो वेवलेंथ लार्जर होगा. ये बहुत मैटर करता है, क्लियर है हियर. सो दिस मैटर्स अ लॉट. Whenever we talk about this wavelength and mass, at that time we can see here this wavelength is inversely proportional to mass. So if mass is larger, value of mass is larger, then wavelength will be smaller, or if mass is smaller, wavelength will be larger because it is inversely proportional. तो हम ये जब लागू करते हैं हमारे डेली रूटीन लाइफ में, साइंस में, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लागू करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू स्मॉल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू स्मॉल, तो उसका वेवलेंथ बड़ा होता है. सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैच बिकॉज़ इट्स लार्जर, पकड़ा जा सकता है वेवलेंथ. इंसान की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हमारा मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, इट कुड नॉट बी कैच. दैट्स व्हाई आई थिंक अकॉर्डिंग टू हिम, that's why we are not able to find out this wavelength till then, but it should exist according to dual nature of matter. So this is the concept of dual nature of matter, which is proposed by de Broglie scientists. Hopefully you everyone amongst you got it. According to de Broglie, matter exists in particle form and wave form, and the relation given that between them, that is lambda is inversely proportional to, or lambda is equal to h upon mv. Mv is nothing but the momentum, that is lambda is equal to h upon momentum p. And being h and v are constant, we can say lambda is inversely proportional to mass. So mass is larger, wavelength is smaller, and if mass is larger, wavelength is smaller. So that is what we can say relation here in de Broglie's principle. और दूसरा जो प्रिंसिपल उसके अंदर आता है, you can see here, दूसरा, that is you can say Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg is the name of scientist, and the principle is uncertainty principle. There is always uncertainty like that. अब ये कॉन्सेप्ट एक बहुत मस्त और अलग कॉन्सेप्ट है. ओके, इसका कहना क्या है? डेल्टा x into डेल्टा p is very much greater than h upon 4 pi, like this. इस तरीके से.
नाउ दिस इज द फॉर्मूला. अब ये सारे फॉर्मूले प्रूव करना हमारे स्कोप के बाहर है, सिलेबस के बाहर है, लेकिन सारे प्रूव किए जा सकते हैं बिकॉज़ दे हैव द डिफरेंट केसेस व्हाट दे हैव पुट फॉर दिस वन. हाइजेनबर्ग का कहना ये है, थ्योरेटिकली कहना है कि दिस इज द पोजीशन, certainty in position. This is you can say certainty in momentum. And this is the Planck's constant and pi is also constant. And this is very much greater than this one. अभी p इस तरफ लेके जा सकते हैं. p is a momentum. जो हम लेकर mass into v, वो यहाँ पे लेके जा सकते हैं. तो डेल्टा x is अभी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डाउन साइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So delta x is very much greater than h upon 4 pi p और 4 pi mv. इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं मोमेंटम. इस तरीका कहना क्या है? Theoretically अगर देखते हैं हम लोग तो इस तरीका कहना ये है, it is very difficult for us or for everyone, for any moving particle, declare for any moving particle to find its momentum and position both certain, both with the certainty, at a time with the certainty. कोई भी मूविंग पार्टिकल हमारे पास होता है तो किसी भी मूविंग पार्टिकल का उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों सर्टेनली नहीं बताया जा सकता. ऐसा उस तरीका थ्योरेटिकल कहना है. सो दैट्स व्हाई delta x is a certainty in position, delta p is a certainty in momentum, and h upon 4 pi. So either you can predict its position or either you can predict its momentum. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मानो आपके एक ऐसा मैजिक हो जाता है और मानो आपके डैड ने आपको एक मस्त कार दे दिया है ना, एक फेरारी जैसा मस्त गाड़ी आपको दे दिया, या रेसिंग बाइक जैसा ना, रेसिंग कार जैसा. और बॉम्बे पुणे हाईवे आप जानते हो, बॉम्बे पुणे हाईवे काफी मस्त है, काफी बड़ा है और वहाँ पे गाड़ियाँ काफी स्पीड में चलती है. दैट डजंट मीन आई एम सपोर्टिंग दैट, राइट? नेवर हैव स्पीड देन द लिमिट. सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी लिमिट. बट मानो वहाँ पे अगर हम लोग आपको अचानक से गाड़ी मिलती है, अज्यूम कर रहे हैं, और आप आपके दोस्तों के साथ डिसाइड करते हो चलो रेनी सीजन है, हम लोग लोनावला की तरफ जाते हैं सडनली दोस्तों के साथ. लेकिन अभी तुम में से ऐसा हो सकता है कि एक दोस्त को आपने सीधा ले लिया, उसने घर में नहीं बताया, एक दो लोगों ने घर में बताया कि वी आर गोइंग टू लोनावला विद द फ्रेंड्स फॉर द पिकनिक विद आवर ओन फेरारी, एंड आप बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं. और एक दोस्त आपका कॉलेज में था जिसके घर में उसने बताया नहीं था, सडनली आपका प्लान हुआ तो वो आपके साथ गाड़ी में जाए, आप पुणे सिटी से बाहर निकले, मस्त एक्सप्रेस हाईवे पे चले गए जहाँ की गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है हाईवे पे. ठीक है, अभी आपका दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ है, उसने बोला कि चलो मैं डैड या मॉम को घर में फोन करके बता देता हूँ, और ही कॉल्ड एट होम, मोबाइल से घर में कॉल किया कि आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड्स टू द लोनावला. और तो घर वाले थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि अब कहाँ पे हो तुम. तो मानो वो बोला कि मैं पुणे के बाहर तलेगांव नाम के एरिया से जा रहा हूँ, तलेगांव में हूँ और आई एम गोइंग टुवर्ड्स लोनावला. ठीक है, और लोनावला और पुणे के बीच में तलेगांव आता है, तो पहला तलेगांव आएगा, उसके बाद फिर लोनावला. अगर उस टाइम जब आपके दोस्त ने घर में फोन करके बताया कि आई एम गोइंग टू लोनावला एंड आई एम एज ऑफ तलेगांव, तो तलेगांव इज अ पोजीशन. कार तो मूविंग है, कार मूविंग है, मूविंग पार्टिकल, मूविंग सब्सटेंस, मैटर है. अभी वो कार के अंदर बैठा है और ही सेइंग दैट आई एम इन तलेगांव एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स लोनावला. तो अगर उसका पोजीशन फिक्स हुआ कि ही इज इन तलेगांव, तो इट्स मोमेंटम सर्टेन नहीं है, तो कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है मोमेंटम सर्टेनली नहीं बता सकते. अगर वो बता रहा है कि आई एम मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, है ना, वेलोसिटी अगर वो बताता है, तो उसका पोजीशन फिक्स नहीं थी, क्योंकि उसने घर वालों को जब बोला कि आई एम इन तलेगांव, आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, उसका बात खत्म होने तक 1 मिनट के अंदर गाड़ी तलेगांव से बाहर निकल गई आपकी. दैट मींस आप झूठ बोल रहे हो, है ना, क्योंकि हम बोलते बोलते गाड़ी जा रही है, गाड़ी चल रही है, तो हम जब बोले तो हमारा पोजीशन अलग था, जब तलेगांव बोले तलेगांव के आगे आ चुके हैं. सो पोजीशन फिक्स नहीं, क्योंकि मोमेंटम 80 किलोमीटर या स्पीड हमारा, वेलोसिटी हमारा 80 किलोमीटर पर आवर. दैट इज ऑल. किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, electron revolves around the nucleus. Many electrons are there. Depends upon the number of atoms, number of electrons present in an atom. Electron revolve होता है, it's a moving particle. उस पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, या तो पोजीशन फिक्स पता होगा या तो उसका मोमेंटम पता. मोमेंटम पता है तो पोजीशन फिक्स नहीं, अनसर्टन है. और उसका अगर पोजीशन सर्टन है, मोमेंटम अनसर्टन है, और मोमेंटम अगर सर्टन है तो पोजीशन उसका अनसर्टन है. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टनिटी. So Heisenberg's uncertainty principle is this one. That is for any of the moving particle, we can't predict. We can say it's a position and momentum certain. Either you can predict or you can tell about its momentum, or either you can tell about its position. Any one among that. This is called Heisenberg's uncertainty principle. Is it true? So also you got it. These are the two major discoveries which laid the foundation of quantum mechanics model, and this theory is rejected. Bohr's atomic model, but helped to reject the Bohr's atomic model because Bohr didn't consider duality of the matter while putting his
concept. वो उसने consider नहीं किया था. ये भी नहीं किया था because he has to explain the distribution of electrons in an atom. Or distribution of electrons in an atom किस तरीके से? That was the question asked to Rutherford. That was the question asked to Bohr. They could not explain. हाँ, electrons stationary orbit में होते. यहाँ तक development Bohr's atomic model में हो गई. लेकिन actual position कहाँ पे है? और कि कौन से cells के अंदर कितने electrons है? ये नहीं बता पाया Bohr, and that's why we have to push for next quantum mechanical model. That is what we discussed. We have this. So till date we have discussed 3 atomic models. Number 1 is J.J. Thomson atomic model. Number 2 is Rutherford's atomic model. Number 3 is Bohr's atomic model. And the last atomic model what we have discussed is called quantum mechanical model. Based on these 2 theories, dual nature of matter put for the de Broglie, and next is nothing but the Heisenberg's uncertainty principle. Based on that, we'll discuss it. Almost that may be end of the chapter, but it will be 2 lectures to be minimum. That's all for today. See you tomorrow with the next concept. Thank you very much. See you tomorrow.